friends. So we are starting today our topic plant tissue for the class 7th and 8th. The plant tissue. What is a plant tissue? Like an animals, the plant also grow. They are dividing. The cells are dividing, and there is a dead cells also. So what is the plant tissue? First of all, plant tissue is a in a human there is a number of the you have learned that there is a number of a tissue present in a human, but we are just learning a plant tissue. There is a two basic tissue present in the a plant. There is a meristematic tissue and a permanent tissue. Meristematic tissue is a growing tissue that help in the growing part of the there is a living cell. ये living है, young है, सारी life ये grow करते रहते हैं, divide करते रहते हैं. वेयर एज परमानेंट ये सारे ग्रो नहीं करते, एक पर्टिकुलर ग्रोथ के बाद आके ये रुक जाते हैं एंड दे विल स्टार्ट इनटू द परमानेंट टिश्यू ऑफ द लाइक जैसे हमारा पेड़ की बाक वगैरह है या जो जो उसकी स्टेम्स बनती हैं थिक वाली, वो क्या होते हैं सारे परमानेंट टिश्यू. मरिस्मेटिक सबसे पहले बात करेंगे मरिस्मेटिक टिश्यू की. मरिस्मेटिक बिफोर स्टार्टिंग दिस प्लीज स्टूडेंट्स जस्ट रिमेंबर दिस वन पॉइंट कि बायोलॉजी में आपको कीवर्ड्स बहुत अच्छे से याद करने पड़ेंगे. कीवर्ड्स लाइक जैसे मरिस्मेटिक टिश्यू का कीवर्ड है ग्रोइंग पार्ट, परमानेंट का है डेड पार्ट, दैट इज अ स्टोरेज उसकी स्ट्रेंथ को थिकनेस के लिए. सो आगे जैसे हम बात करेंगे तो कीवर्ड याद करने सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी लोकेशन, उनका फंक्शन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फ्लो चार्ट बनाओ और उसका कीवर्ड लिख लिख के याद करो. यू विल लर्न इट वेरी वेरी क्विकली. आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, भूलोगे नहीं. जब भी आपको रिफ्रेश करना है जस्ट ओपन द फ्लो चार्ट एंड यू कैन फर्दर जस्ट हैव अ लुक एंड यू विल रिमेंबर ऑल द थिंग्स. सो द फर्स्ट वन इज अ मरिस्मेटिक टिश्यू. मरिस्मेटिक जो ग्रोइंग पार्ट है, आपने ध्यान से देखा होगा प्लांट कहाँ कहाँ पे ग्रो करता है. कहाँ करता है? रूट पे एंड शूट पे. लाइक उसकी रूट्स भी अंडरग्राउंड वो ग्रो कर रही है और वो आगे उसकी जो स्टेम्स है शूट्स हैं वो भी ग्रो कर रही हैं. तो मरिस्मेटिक टिश्यू तीन तरह का होता है, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल. जो टाइप ऑफ टिश्यू है, एपिकल जो टिश्यू है दैट इज अ फर्दर डिवाइडेड इनटू रैम एंड सैम. what is a ram and sam? Ram easily ram is a r means root, s means shoot. Root apical meristematic and shoot apical meristematic. The apical part of the plant is a to help in the growth of the shoot. The apical meristematic tissue help in the growth of the plant either by root or either by a shoot. Intercalary is present at the nodes of the plant that helps in the like a length of the stem. So keyword is length of a stem. ये किस में हेल्प करता है? स्टेम की लेंथ को इंक्रीज करने में इंटरकैलरी टिश्यूज हेल्प करते हैं. लेटरल टिश्यू एक जो स्टेम है उसकी थिकनेस को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं कि स्टेम उसकी जैसे पहले ग्रीन कलर की होती है, धीरे 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 जब इसके होता है कि स्टेम उसकी थिक होनी शुरू हो जाती है, दैट इज कॉल्ड दैट इज अ ड्यू टू द लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. So friends, here is a diagram of the apical meristematic tissue. Very simple that you have seen in the books. Apical at the tip of the stem, intercalary at the nodes of the stem, and it will help in increase the leaves and the length of the stem. And lateral, that is a thickness of the, this is under the epidermis layer. Epidermis means outer layer, that we will discuss it further on. Epidermis means a outer layer of the a stem. So, the moving on the next part, permanent tissue. As I say कि permanent tissue एक particular time के बाद आके cell growth रुक जाती है and they start a like a increase the thickness of the dead cell in the plants, that is a permanent tissue. Permanent tissue भी अब दो तरह के होते हैं, simple and complex. Simple means जो simple उसको एक प्रोटेक्शन के लिए या उसको सपोर्ट करने के लिए जो टिश्यूज होते हैं, they are simple tissue, as I say, protective tissue and a supporting tissue. In a scientific language, we say it as a dermal tissue and ground tissue. The dermal tissue, it gives the protection to the plant, and ground tissue, it supports the plant. That is a both are the very important. Just read it and listen it properly. The dermal tissue, epidermis and a corm.
एपिडर्मिस कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सबसे आउटर लेयर पे जो प्रेजेंट होते हैं, दैट इज अ एपिडर्मिस। आपने देखा होगा कि जैसे प्लांट पे अगर हम पानी डालें तो प्लांट का जो पत्ते हैं या स्टेम है वो इतनी जल्दी गलते नहीं है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, उस मतलब वो अगर नहीं होगा तो क्या होता है, इसमें क्या होता है, एपिडर्मिस के बाहर, एपिडर्मिस में एक क्यूटिन नाम की एक लेयर होती है, क्यूटिन, दैट इज अ वैक्सी लेयर। वो पूरे प्लांट के ऊपर एक वैक्सी लेयर एक प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो प्लांट है वो बहुत जल्दी गीले नहीं होते और वो जल्दी वो गल नहीं जाते, इन अ सिंपल लैंग्वेज वो गल नहीं जाते। सो दिस इज अ वैक्सी सब्सटेंस, दैट इज अ कॉल्ड क्यूटिन। वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है वो, और किसके लिए होती है, प्रोटेक्शन के लिए, उसको एक एक लेयर प्रोटेक्ट करती है, एपिडर्मिस लेयर। नेक्स्ट इज द कॉर्क। Cork is also giving the protection, but cork is just under the epidermis, that is a cork cambium। ये भी उसको क्या करती है, एक प्रोटेक्शन देती है कि उसमें कोई पैथोजेंस या कोई पेस्टिसाइड्स उसमें एंटर ना कर सके ऑन द प्लांट के अंदर। सो द डर्मल टिश्यू इज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू। डर्मल टिश्यू कितने तरह के हैं, एपिडर्मिस एंड cork। So next is a one is a ground tissue, that is a सपोर्टिंग टिश्यू टू गिव अ सपोर्ट टू द प्लांट। हाउ कैन लाइक कैसे सपोर्ट करते हैं, आपने देखा होगा कभी कि जैसे अगर मैं प्लांट को ऐसे हल्का सा उसको हल्का सा बेंड करूँ, वो बेंड हो जाता है, वो ऐसे नहीं है कि वो टूट गया। तो ये सारी जो स्ट्रेंथ है, इलास्टिसिटी है, उसकी पैकेजिंग है, उसको जैसे सॉफ्टनेस है स्टेम की, मैं स्टेम को दबाऊं तो वो दबती नहीं है, तो ये सारा कुछ ये टिश्यू कौन देता है, दैट इज अ ग्राउंड टिश्यू और अ वी कॉल एज अ सपोर्टिंग टिश्यू। very very important, parenchyma, collenchyma and sclerenchyma। पैरन, कॉलन एंड स्केलेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं, दे आर फॉर द पैकेजिंग ऑफ द सेल्स। क्या करते हैं, उसको पैकेज करने में हेल्प करते हैं। इसमें बहुत सारे सेल्स जो होते हैं ओवल होते हैं और इनमें इंटरमोलिकुलर स्पेस होती है कि वो जैसे हम नॉर्मल कोई पेरिशेबल आइटम को हम पैकेजिंग करने के लिए सपोर्ट करते हैं, ऐसे ही पैरेन्काइमा सेल्स जो है वो प्लांट में हेल्प करते हैं उसको पैकेज करने में। पैकेज मीन्स उसको बांध के रखने में। तो दैट इज अ पैरेन्काइमा सेल्स। और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फ्लावर में, स्टेम में, लीव्स में, और इवन जाइलम में भी। जाइलम आगे वेस्कुलर टिश्यू में बात करेंगे, उसमें भी ये प्रेजेंट होते हैं पेरेन्काइमा सेल। और किसके लिए करते हैं, इनका डिफरेंस जो है पेपर में बहुत बार आता है, डिफरेंस बिटवीन पैरन कॉलन एंड स्केलेरेन्काइमा। तो पेरेन्काइमा पैकेजिंग टिश्यू होते हैं, कॉलेनकाइमा ये बहुत ही टर्जिट होते हैं। कॉरेनकाइमा कहाँ पे होते हैं, एट द एजेस ऑफ द लाइक वो बिल्कुल एजेस पे होते हैं। ये क्या करते हैं, ये करते हैं प्रोटेक्ट करते हैं। इसमें एक पैक्टिन नाम का एक एक लाइक थिंग होती है जो उसको एक हेल्प करती है उसके सपोर्ट करने में, उसको एक इलास्टिसिटी देने में। जो पैक्टिन नाम का ये थिंग है, टिश्यू है, ये उसको हेल्प करता है उसको लाइक सपोर्ट करने में। सेम जिसमें उसको बेंड किया वो टूटा नहीं, उसको एक सपोर्ट करने के लिए हेल्प करता है कॉलेनकाइमा। इनकी शेप कैसी होती है, ओवल रेक्टेंगुलर। और पैलेनकाइमा जो होते हैं वो थिन होते हैं, काफी लूजली लूजली बाउंड होते हैं। कॉलेनकाइमा वो भी थोड़े से थिन और लूजली बाउंड होते हैं। और दे ये दोनों सबसे बड़ा डिफरेंस जो है, ये लिविंग है और ये भी लिविंग है, मीन्स ये ग्रो करते रहते हैं। वेयर एज अ स्केलेरेन्काइमा, दीज आर द डेड सेल्स। ये क्या होते हैं, डेड सेल करते हैं और ये प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी प्लांट को। लाइक हस्क ऑफ द कोकोनट, जो उसके ऊपर छील सी होती है, बहुत सख्त होती है, वो कौन सा टिश्यू होते हैं, स्केलेरेन्काइमा। उसके अंदर जो नट होता है उसको सेफ रखने के लिए, उसको सिक्योर करने के लिए स्केलेरेन्काइमा टिश्यूज आर used। These are the but the main difference between the parent colon and scleron, parent and colon they both are the living, and a sclerenchyma is a dead cell, they are a protective cells। तो थर्ड पार्ट है, द लास्ट वन इज अ कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स में क्या होता है, देर इज अ कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, वस्कुलर टिश्यू। वस्कुलर टिश्यू इज फर्दर डिवाइडेड टू टू पार्ट्स, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जो होता है दैट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू फोर टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, ट्रेकियाज, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम स्केलेरेन्काइमा। बट ये क्या करता है, जाइलम एंड फ्लोएम ये सबसे ज्यादा प्लांट के अंदर सेल्स होते हैं, परमानेंट सेल। जाइलम जो करता है, ये जैसे हमने प्लांट को पानी दिया, उसके न्यूट्रिएंट्स है, वो सारे जो रूट्स है, इसको एक थ्योरी के रूट सैप थ्योरी आई अगली बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे
कि उस थ्योरी से उस पानी को सक करके ये अपवर्ड पूरे प्लांट तक उसको पहुंचाता है, वाटर को, मिनरल्स को पूरे प्लांट तक इसको ट्रांसपोर्ट करता है। दिस इज अ वन वे ओनली। वन वे मीन्स ओनली इन अ अपर डायरेक्शन। मैं अगर पौधे को ऊपर से पानी दूंगी तो उसका कोई फायदा नहीं है। पानी जो है हमेशा कहाँ से होके जाएगा, रूट से ही के माध्यम से ही होके ऊपर जाएगा। ऊपर मैं अगर लीव्स को पानी दूंगी तो पौधे पौधे को पानी नहीं मिलेगा। जस्ट रिमेंबर दैट। तो वाटर एंड मिनरल कहाँ से जाएंगे, सॉइल से, और होके ही जाएंगे। जब हम उसकी रूट्स को पानी में डिप करेंगे तभी वो पानी जो है और मिनरल्स अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। इसमें क्या होता है कि नो एंड वॉल्स बिटवीन द सेल्स, ये जो है बड़ी थिक स्टिफन लिग्निन सेल्स होते हैं। और ये देखिए जैसे वन वे डायरेक्शन ही होता है। वन वे पे मैं क्यों ज्यादा बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि फ्लोएम जो है वो उसका डबल वे होता है। वेरी कॉमन क्वेश्चन कि जाइलम की जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, दैट इज फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड ओनली, अ वन वे। किसको ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर एंड मिनरल को। वेर एज अ फ्लोएम, फ्लोएम क्या करता है, अब लीव, खाना कौन बनाता है, लीव्स। लीव्स ने खाना बनाया, अब उसको कहाँ, अब बाकी लीव्स को भी, जो बाक है और रूट्स है उनको भी तो खाना चाहिए। तो वहां पे खाना कैसे पहुंचता है, तो फ्लोएम जो टिश्यू है वो कैरी करता है फूड पार्टिकल्स को। क्योंकि लीव, अगर सपोज यहाँ पे एक लीव है तो उसके ऊपर भी और लीव है और भी स्टेम्स हैं, तो खाना वो ऊपर की तरफ भी भेजते हैं लीव, और नीचे की तरफ भी। तो मतलब क्या हो गया, दैट इज अ टू वे फ्लो। रिमेंबर दिस, जाइलम इज ओनली वन वे। इसको किसको करता है, किसको ट्रांसपोर्ट करता है, फूड एंड वाटर को, और सॉरी, वाटर एंड मिनरल को। लेकिन फ्लोएम किसको करता है ट्रांसपोर्ट, फूड को। किस डायरेक्शन में, बोथ वे, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। वेरी वेरी, दिस इज द की वर्ड्स ऑफ द, टू रिमेंबर ऑल दिस, क्योंकि इन्हीं के बेस पे ऊपर ही मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन द एग्जाम्स। तो सेल वॉल क्या होती है, इसमें जो सेल्स होते हैं दे हैव अ लाइक अ, इसमें जैसे जाइलम में मैंने आपको बोला कोई सेल वॉल स्टिफन नहीं होती, कुछ नहीं होता, लेकिन फ्लोएम में एक सेगमेंट्स होते हैं। सी, देयर इज अ, एक सेगमेंट है, सो दैट कि जब ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जाएगा, लाइक उसमें सेक्शंस है, तो सेक्शंस के ऊपर और नीचे दोबारा नहीं जा सके, सो दैट इज कॉल्ड अ फ्लोएम। और फूड जो है बोथ वे डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। Yes, the difference between the xylem and phloem, very easy. Xylem क्या करता है, वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट। फ्लोएम क्या करता है, फूड को, बोथ डायरेक्शन में। जाइलम के 4 पार्ट्स होते हैं, ट्रेकिया, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जेलन स्केलेरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ के बाकी जो सारे सेल्स होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं। फ्लोएम किसमें, फ्लोएम में क्या होता है, फ्लोएम में क्या होता है, कंपेनियन सेल, सीवी ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। इसमें फ्लोएम फाइबर्स को छोड़ के बाकी जो सारे सेल्स हैं वो लिविंग होते हैं, ये सिर्फ डेड सेल्स होते हैं। सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। सो प्लीज ट्राई दिस, कि इसका फ्लो चार्ट बना के आप इसको रिवाइज करें एंड इसको लर्न करें, उसके कीवर्ड के साथ लर्न करें। इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। Oh,